दिन है आप सभी के लिए। I welcome all of you to this Zoom meeting, especially those who are watching through the Facebook. और मैं सभी का स्वागत करता हूं इस जूम की सभा में, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। Please share this live with your friends. मेरी यह विनती है कि फेसबुक का जो लिंक है इसको आप शेयर कीजिए। So be in expectation, be with your Bible. I'm going to share some spiritual truth with you. आप अपेक्षा के साथ यहाँ पर बैठे रहिए, अपने बाइबल के साथ बैठे रहिए, Because the word of God can change your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। We can look to pastors, we can look to prophets, but nothing will come to your life. Only if the word of God will come true in your life. हम पासवान की तरफ हम देख सकते हैं, भविष्यवक्ता की तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। And today when I preach the word, in my spirit I can see that it is going to manifest in many lives. और आज जब मैं वचन को प्रचार करूंगा, मैं अपने आत्मा में देख रहा हूं कि ये वचन कईयों के जीवन में प्रकट होने वाला है। You don't look at my style of preaching. Don't look at my nature, because this is the word of God. It is going to manifest. It is not me. आप मेरे प्रचार के तरीके पे उसको मत देखिए, मैं किस प्रकार से प्रचार कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वही वचन आपके जीवन में काम करेगा। Father, I am praying for each and everyone in the Zoom meeting. पिता each and परमेश्वर मैं everyone. हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस जूम की सभा में शामिल है। I am praying for today's verse. I pray that when I preach the word, let the power of God manifest in each and everyone's life. मैं परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब वचन का प्रचार किया जाएगा तो परमेश्वर की सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करेगी। Let them receive their miracle today. हर एक जन अपने चमत्कार को ले ले। I can see many people are coming out of darkness today. मैं देख रहा हूं कि आज कई लोग अंधकार से बाहर निकल रहे हैं। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। Okay, we are going directly with the God. Let us read Romans chapter 4 verses 17. Romans chapter 4 verses 17, 17. Yeah. I will read. रोमियो का चौथा अध्याय का 17 वचन हम पढ़ने वाले हैं। This is what the scripture means. When God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. रोमियो का चौथा अध्याय का 17 वचन हम पढ़ते, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। Here I am going to talk about two things. First one, the God who brings back the dead to life. The first thing. यहाँ पर मैं दो बातों के पर मैं बात करने वाला हूँ। पहली बात यह है, वो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिंदा करता है। And the second thing is the God who creates something out of nothing. और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि वो परमेश्वर जो कुछ बनाता है, जो है ही नहीं, उनमें उस वहां से वो कुछ बनाता है जहाँ पे कुछ नहीं है। I will talk about these two things in today's preaching, and God is going to do big things in your life. आज मैं इन दोनों बातों पर मैं प्रचार करने वाला हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। You know that you are a spiritual being. आपको मालूम है कि आप आत्मिक व्यक्ति हो। Everything in our life is actually coming from our spiritual being. हर एक चीज हमारे जीवन में जो भी है वो हमारी आत्मा के द्वारा से बाहर आता है। Every blessing, everything, every new things, every good thing is actually coming from the spiritual realm. हर एक अच्छी बातें, हर एक नई बातें वो आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन के में आती है। We are living in a body, actually we are a spirit. असल में हम तो आत्मिक व्यक्ति है और हम एक शारीरिक इसमें जीते हैं।
शरीर में जीते हैं। But most of the people do something wrong because they are seeking material things in their life. Actually, they are a spiritual being. लेकिन कई लोग एक गलती करते हैं कि वो गलती ये है कि कई लोग वो शारीरिक चीजों पे ज्यादा ध्यान उसकी खोज में रहते हैं, लेकिन आत्मिक बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। If you are a spiritual being, you should seek the spiritual things. अगर आप आत्मिक जन हो तो आत्मिक बातों पे ज्यादा ध्यान देना अनिवार्य है। Even if you seek the physical blessing from the physical realm, it will not come to you. अगर हम शारीरिक आशीषों को हम खोजते हैं तो वो शारीरिक आशीषों भी हमारे जीवन में नहीं आती है। Then how can we achieve the good things, blessings in our life? तो हमारे जीवन में अच्छी बातें हमारे जीवन में कैसे आएंगी? The blessing should be first come to in our spirit, then to the physical realm. आशीष है सबसे पहले हमारे आत्मा के भीतर में आना चाहिए, फिर वो हमारे शारीरिक में आता है। The truth is, whatever you have in your spirit, it will manifest into your physical realm. सच्चाई ये है जो कुछ भी आपकी आत्मा में है वो ही चीज आपके जीवन में प्रकट होगा। If you are spiritually rich, that richness will come to your physical realm. अगर आप आत्मिक तौर से धनवान है तो आपके जीवन में शारीरिक तौर से धनवान आप हो जाओगे। Maybe you have cars, maybe you have houses in this world, but if you are not rich in your spirit, that is going to be a wasting in your life. अगर हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे घर है आपके पास, लेकिन अगर आप आत्मिक तौर से धनवान नहीं है तो ये जो शारीरिक चीज जो आपके पास है ये सब कोई काम की नहीं होंगी। If you are really a blessed person, yeah, if you are really a rich person in your spirit, wherever you go, you will see the prosperity of God. अगर आप आत्मिक तौर से धनवान हो तो आप कहीं भी जाइए, जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर आप परमेश्वर की समृद्धि को आप अपने जीवन में देखेंगे। For example, if you are doing a business and if you are a spiritually rich person, then your business will prosper. उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आप एक वैसा करने वाले व्यक्ति हो और अगर आपका आत्मा धनवान है तो आपका जो वैसा है वो भी सफलता पाते हुए आगे बढ़ेगा। What I am trying to say is everything you have is actually coming from the spiritual realm. मैं क्या बात बोलना चाहता हूं वो ये है कि जो कुछ आपके पास है वो सारी चीजें, वो सारे वस्तु है वो आपके ही आत्मा के द्वारा से बाहर आता है। We are a born again person, we know Jesus Christ and we are connected with God through our spirit. हम नए जन्म पाए हुए व्यक्ति है, हम यीशु मसीह से संपर्क करते और परमेश्वर के पास भी यीशु के द्वारा We are connected with Jesus through our spirit. हम यीशु से हम जुड़ते हैं हमारी आत्मा के द्वारा। So what happens if that spiritual connection breaks? What happens? तो क्या होगा अगर हमारा आत्मिक संपर्क टूट जाए तो? Because it is called death. When we have a spiritual separation with God, this is called death. बाइबल बोलती है अगर आपका आत्मिक संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है तो आपके जीवन में मृत्यु आती है। Many people are actually living in spiritually death situation, but they don't know. कई लोग आत्मिक मृत्यु की दशा में जी रहे हैं लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं। Because of that, they are not seeing any blessing in their life. They are facing many kind of difficulties, many kind of trouble, because they are in the spiritually dead situation. और क्योंकि वो एक आत्मिक मरी हुई दशा में जी रहे इसलिए वे अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख रहे और उनका जीवन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। But today God is telling you, God can change your death situation into a life. लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है कि आपकी जो मरी हुई दशा है उसको मैं जीवन दे सकता हूँ। Because many of the people, they are going through troubling situation and they are like going through death in their life. But God is telling,
God can give you a new life. और कई लोगों के जीवन में एक मरी हुई दशा के समान वे जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आपको एक जीवन दे सकता हूँ, एक नई जीवन दे सकता हूँ। If you have that revelation of life in your life, this is going to manifest in each and every situation. अगर आपके पास ये प्रकाशन है तो ये आपके जीवन में उसको प्रकटीकरण होगा। I want to tell you another thing about this preaching. Can you repeat once again? Actually, I want to tell you about why we are preaching. अभी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग याजक क्यों है। Because before the start of the meeting, when me and Prophet Noel were talking, I talked Noel about a revelation. जब इस सभा को चालू करने से पहले आज जब मैं भविष्यवक्ता नोएल से बात कर रहा था तो मैंने नोएल को एक प्रकाशन के बारे में बताया। Do you know how we preach? आपको मालूम है कि हम लोग प्रचार कैसे करते हैं? First we get a revelation from God. सबसे पहले हमें परमेश्वर से हमें एक प्रकाशन मिलता है। Then we believe that revelation. फिर हम उस प्रकाशन पर हम विश्वास करते हैं। Then we will preach about that revelation. फिर हम उस प्रकाशन के ऊपर हम प्रचार करेंगे। But when we are preaching, a good thing is happening. Something is happening when we are preaching. लेकिन जब हम प्रचार करते हैं और कुछ बातें अच्छी होती है, when we are preaching, we are activating that revelation in our life. जब हम उस चीज को जब हम प्रचार करते हैं, वो बातें हमारे जीवन में क्या हो जाता है, वो उसका प्रकटीकरण होता है। This is something like the work of our faith. The faith should have work, and we are doing the work of faith. ये उस बात को दर्शाता है कि हमारे विश्वास को हम कार्य में ला रहे हैं। For example, when I am preaching about the healing or when I am preaching about the financial miracles, I am preaching and I am receiving that thing into my life. उदाहरण के तौर पे जब मैं चंगाई के बारे में प्रचार करता हूँ या मैं प्रचार करता हूँ आर्थिक पैसों के बारे में प्रचार करता हूँ, तो यही बातें मैं खुद अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। This is applicable to you also, because ये बात if you आपके hear लिए this भी लागू message, होती है। if you hear this message and if you receive this message, it will be activated in your life. अगर आप इस वचन को आप सुनेंगे और इस पे आप कार्य करेंगे तो ये आपके जीवन में वो प्रकटीकरण करेगा। The truth is actually I am preaching and my spiritual level is growing each and every time. सत्य ये है कि मैं जब प्रचार कर रहा हूँ तो मेरा आत्मिक तौर वो बढ़ रहा है स्तर। Most of the people don't like preaching because they want miracles and prophecies. बहुत से लोगों को प्रचार उनको पसंद नहीं आता है, उनको केवल चिन्ह चमत्कार पसंद है। But the actual thing is, if you really believe this, it is actually you are activating that blessing in your life. लेकिन सत्य बात यह है कि जब प्रचार को जब हम सुनते हैं और उस पे विश्वास करते हैं तो ये वो हमारे जीवन में उसको हम लागूकरण करते हैं। So today God is telling you, God is going to change your death situation into a life. आज परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मरी हुई दशा को मैं बदल कर जीवन दे रहा हूं उसमें। Sister Alice Shimo, God is telling you, God is going to give you the answer of your prayer. बहन आरी सिमोन, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं। Very soon you are going to get a good news. बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है बहन। And God is going to bless your womb. God is going to bless your womb. Yeah. परमेश्वर आपके गर्भ को आशीष करने वाला है। आप जल्दी एक माँ बनने वाले हो। She is going to have a baby very soon. आप जल्दी से आपको एक बच्चा होने वाला है। Actually, when I am preaching, the God is working. अब जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो परमेश्वर कार्य भी कर रहा है। Because this word has power and it has manifestation. क्योंकि ये वचन जो है इसमें सामर्थ है और इसमें प्रकटीकरण भी है। Okay,
First, I am telling what kind of a death I am talking. I am talking about a death that is a spiritual separation. अब मैं किस प्रकार का मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं? मैं आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं, परमेश्वर से दूर होना। Many people think that our physical death has some importance in our lives. Actually, that is not true. Spiritual separation is the real death. कई लोग बोलते हैं शारीरिक मृत्यु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक मृत्यु महत्वपूर्ण बात नहीं है। असली महत्वपूर्ण बात ये आत्मिक मृत्यु वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। Actually, I want to prove it by reading a verse, Genesis chapter 2, verses 16 and 17. उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 16 और 17 हम पढ़ते। I will read first. Yes. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटक के खा सकता है, परंतु परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। Here God is talking to Adam and Eve about eating a fruit. यहाँ पे परमेश्वर आदम और हवा से एक वाक्य बात कर रहा है कि एक फल न खाने के बाद, If they eat the fruit of knowledge of good and evil, they will die. यदि तू ज्ञान और भले का तू फल खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। But they ate that fruit and they didn't die at that instance. लेकिन हम देखते हैं आदम और हवा ने दोनों ने मिलकर ये फल खाए, लेकिन वे दोनों तुरंत नहीं मरे। Why? क्यों नहीं मरे तुरंत? Actually, what happens when they eat that fruit, their spirit separated from the communion of God. लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब ये फल खाया तो दोनों की आत्मा परमेश्वर से वो संपर्क टूट गया। Because they have a connection with God, God will come and walk with them. They have a communication together. But when they eat that fruit, that connection, they lost that connection. There is a spiritual separation between God and them. हम देखते हैं कि आदम और हवा फल खाने से पहले उनका जो संपर्क था परमेश्वर के साथ था, और रोज शाम को परमेश्वर आता था वाटिका में और आदम और हवा से बातचीत करता था। लेकिन जब इन दोनों ने वो फल को खाया तो उनका संपर्क परमेश्वर से टूट गया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। Many people think that Adam and Eve were naked, but actual truth is they were covered with the glory of God. आमीन। कई लोगों के मन में ये विचार है कि आदम और हवा जो थे वे नंगे थे। नहीं, वो आदम और हवा नंगे नहीं थे, असल में वे उन्हें परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा से ढांपा था। But when they ate that fruit, the sin enters into their life. A spiritual separation happened. At that instance, that glory left their life. हम देखते कि जब आदम और हवा ने ये फल को खाया तो उसी वक्त उनका जो संपर्क था परमेश्वर के साथ वो संपर्क टूट गया और उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु आ गई। और जो वस्त्र परमेश्वर ने उन्हें दिया था, आत्मिक वस्त्र, वो महिमा का जो वस्त्र दिया था, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। अब वो नंगा हो गए। And also God has given them authority over every plants and every animals and all over the earth. That authority also left. और हम देखते परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी के सारे जानवर, सारे प्राणी, सारे पक्षियों के ऊपर उन्हें अधिकार दिया था। जब वे पाप किए तो ये अधिकार भी उनसे वो ले लिया गया था। So I can see that if you have a spiritual separation from God, if you have a spiritual death, what will happen? The glory of God will be left from glory of God will be left. And also your authority will be gone. You will have no connection with God.
मैं देख रहा हूं कि अगर आपके जीवन में आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक अलगाव है, परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं, तो आपके जीवन में सबसे पहले आपके जीवन में आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आप परमेश्वर से संपर्क नहीं कर पाओगे और आपके जीवन में कुछ भली बातें नहीं होंगी। Then what happens? Their spiritual death already happened, and that death followed into their body also. हम देखते हैं कि उनकी आत्मिक मृत्यु हुई और यही आत्मिक मृत्यु आगे बढ़कर शारीरिक मृत्यु में परिवर्तन हो गया। So I can see that, we can see that whatever in our spirit, it will come to our body, it will come to our physical realm. हम देखते हैं कि हमारी आत्मा में जो बातें हैं वही बातें हमारे शरीर में भी आती है। Here the death comes to the Adam and Eve in the spiritual realm, it comes to their physical realm also, because they died. After some time they died. कि हम देखते हैं कि सबसे पहले आदम और हवा के जीवन में आत्मिक मृत्यु आई और ये आत्मिक मृत्यु आगे बढ़कर शारीरिक मृत्यु में परिवर्तन हुआ। I want to tell you a truth. Whatever you have in your spirit will manifest to you. मैं आपको ये बात, एक सत्य बात बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मा में जो भी बातें हैं वो बातें प्रकटीकरण अवश्य करेगा। We know that in Jesus Christ all the spiritual blessing is given to us. हमें मालूम है कि मसीह में सारी आशीषें हमें दे दी गई है। How many of you can believe you are blessed in Jesus Christ? कितने लोग ये बात को विश्वास करते कि मसीह में मैं आशीषित हूँ, मसीह में मैं आशीषित हूँ? कितने लोग विश्वास करते हैं? Today when I am preaching this truth to you, this blessing that is in your spirit is going to manifest to your spiritual realm. आज जब मैं इस बात को मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये सत्य बात जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये बात आपके शारीरिक जीवन में भी वो प्रकट होगा। Because I can see that some of you are going to a difficult condition, but today God is opening your eyes to your blessing. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई लोगों के जीवन में एक नाजुक परिस्थिति से वो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है ताकि आपको इस बात को समझ आ सके। Pawan Tekam, God is telling you, you are a spiritually blessed person. पवन टेकम, परमेश्वर बोल रहा है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, जो आशीषित पाए हुआ व्यक्ति हो। Don't look at your circumstances. You are in Jesus, and because of Jesus you are blessed. आप अपनी परिस्थिति पे ध्यान मत दीजिए, आप मसीह में हो और इस कारण से आप आशीषित हो। And I can see that whatever I am preaching, you are receiving with a joyful heart. और मैं देख रहा हूँ कि जो भी बात मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप उस प्रचार को ग्रहण कर रहे हैं, खुशी से आप उसको ग्रहण कर रहे हो। Now God is activating that thing in your spiritual realm. आप परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को वो कार्य में ला रहा है। I can see that the month of June is going to be a blessing in your life. मैं देख रहा हूँ कि जून महीने आपके लिए आशीष का कारण होगा। God is giving me a date, June 17, 17. मैं परमेश्वर मुझे बता रहा जून का 17 तारीख। And I can see that you are traveling to a country. और मैं देख रहा हूँ कि आप एक देश में सफर कर रहे हो। And God is also using, I can see that God is giving you some kind of a business. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको किसी प्रकार का व्यवसाय दे रहा है। I can see a shop which sells chappals. That means मैं देख रहा हूँ एक दुकान जो चप्पल की दुकान देख रहा हूँ। I can see some that kind of a shop is going to happen in your life. मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऐसी दुकान आने वाली है, चप्पल बेचने वाली दुकान। And it is going to be a big shop. It is going to be a big shop. और ये दुकान काफी बड़ी दुकान होगी। So what I am telling is, we have all the spiritual blessing in Christ, and it is in our spirit. मैं क्या बात बता रहा हूँ कि हमारे पास सारी आत्मिक आशीष है और ये मसीह में है। Whoever believes this revelation, it will be activated in your life. जो भी इस प्रकाशन को विश्वास करेगा, ये बात उसके जीवन में लागूकरण होगा। Also, your healing is also in your spirit, because God Jesus already healed you. आपकी शरीर की चंगाई आपके ही आत्मा के भीतर में है, क्योंकि यीशु ने आपको
पहले से ही चंगा कर चुका है। If you believe this with full your heart, the healing will manifest in your body. अगर आप संपूर्ण हृदय पे इस बात को विश्वास करोगे तो आपके जीवन में चंगाई का प्रकटीकरण होगा। I can see that a problem that is related to the shoulder and neck. I can see a decay of bones. God is going to heal that problem. मैं देख रहा हूँ किसी के कंधों पे और उसके गर्दन में एक वो हड्डी का जो है वो हड्डी पूरा खराब हो गया और परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा कर रहा है। If you are watching this through the Zoom or through the Facebook, or maybe later, God is telling you, if you are the person, receive that healing right now. परमेश्वर बोल रहा है अगर वो व्यक्ति जूम या फेसबुक के माध्यम से देख रहा है, आप अपनी चंगाई को ले लो अभी इसी वक्त। Because it is in your spirit. When you are believing that revelation, it is manifesting to your body also. क्योंकि आप जब इस प्रकाशन पे विश्वास करते हो, ये प्रकाशन आपके जीवन में कार्य करेगा। So we are talking about the spiritual death. In order to, हम यहाँ पर अभी इस आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। In order to actually, I want to give an example of a spiritual death in a simple way. मैं आत्मिक मृत्यु का उदाहरण देना चाहता हूँ बहुत सरल रूप में। There's an example of prodigal son in Bible. उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में बताया गया है। उड़ाऊ पुत्र। Let us read Luke chapter 15 verses 32. लूका का 15 अध्याय का Luke 15 Luke chapter 15 verses 32. I will read. Yes. Just read please, prophet. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. लूका का 15 अध्याय का 32वां वचन हम पढ़ रहे हैं। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। Here Jesus is talking about a prodigal son. He left his father's house and went to a different place, and he lost everything. And when he came back to the home, the father said that son was actually dead. Now he come back to life. Yeah. हम देखते कि ये इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बताता है कि ये व्यक्ति अपने पिता का घर को छोड़कर एक दूर देश में चला जाता है और वहां पर उसने अपने सारे पैसों को खो देता है और बाद में जब सब पैसे खोने के बाद जब वह वापस अपने पिता के घर आता है तो पिता बोलता है आइए अभी हम मगन करें और आनंद करें, क्योंकि तेरा भाई जो था वो मर गया था, फिर जी गया और खो गया था, अब मिल गया है। Here we can see that the father is actually a representation of God. अभी यहाँ पे जो पिता जो है वो जो शारीरिक जो पिता वो परमेश्वर को दर्शाता है। If you are away from your father's house, you are spiritually dead. अगर आप अपने आत्मिक पिता के घर से दूर हो तो आप आत्मिक मृत्यु है आपके जीवन में। He have everything when he was with father. जब वो अपने पिता के घर में था, इस लड़के के पास सब कुछ था। When he left his father, he lost everything. जब ये लड़के ने अपने पिता से दूर हो गया तो उसने सब कुछ खो दिया। And he even think about eating the food of pig. That was his situation. और उसके जीवन में एक ऐसी गंभीर परिस्थिति आ गई कि उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि सूअरों का जो भोजन था उसको खाने के लिए, सूअरों का भोजन। Let us read Luke chapter 15 verses 14 to 16. लूका का 15 अध्याय का 14 से 16 पढ़े। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जहाँ पड़ा, उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन बलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। Now we can see that he is away from the father and the spiritual death manifested in his life.
हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लड़का जो है अपने पिता के घर से दूर हो गया और उसके जीवन में आत्मिक मृत्यु का प्रकटीकरण हो गया। I want to prove I want to prove this by the word. For example, first verse 14 says, about the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. और तो पहली बात मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले उसके जीवन में उसने सारे पैसे उसने खर्च कर दिया और उस वक्त उस देश में अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। First thing, all the money gone. First thing. सबसे पहली बात, सारे पैसे चले गए। When he was with father, he has everything, but he left the father, all the money gone. जब वो अपने पिता के पास था, उसके पास सब कुछ था। जब पिता से दूर हो गया तो सारा पैसा भी चला गया। And wherever he went to a place, a famine set over that land. उसने एक देश में गया और उस देश में अकाल आ गया। For example, if you are a spiritually dead person, wherever you go, you will see starvation, you will see famine, you will see nothing good in that place. अगर आपके जीवन में आत्मिक मृत्यु है, आप जहाँ आप कहीं पे भी जाएंगे आप, तो आपके जीवन में उन्नति नहीं आएगी, सफलता नहीं आएगी, आपके जीवन में गरीबी दशा होंगे आप। And we can see that nobody helped him. और हम देखते हैं कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। I can also see that his character changed. हम देखते हैं इसका चरित्र भी बदल गया। Because he wished to eat the food of pig. और अभी हम देखते हैं कि अभी वो तैयार हो गया कि सूअरों का भोजन भी खाने के लिए तैयार हो गया। Because that man was a Hebrew. For a Hebrew person, pig is a detestable animal. क्योंकि ये जो व्यक्ति था, ये एक हिब्रानी व्यक्ति था और इजरायली लोगों के लिए वो सूअर जो है वो एक घृणित प्राणी है। But because of his situation, he want to eat the food of pig. लेकिन उसकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि वो सूअरों का भोजन भी खाने के लिए तैयार हो गया। What happens? Actually, his nature changed. क्या हुआ? उसका स्वभाव पूरा बदल गया। I want to stress a point. When you are with God, you have a godly nature. Whenever you left the Father's house, whenever you left the presence of God, your godly nature will go. आमीन। हम देखते, मैं किस बात को बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने पिता के घर में रहेंगे, पिता के साथ रहेंगे, तो आपके पास परमेश्वर का स्वभाव होगा। लेकिन जब आप अपने पिता से दूर हो जाओगे तो आपके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं रहेगा। And some people are watching. These things is already happening in their life. और कुछ लोग जो अभी देख रहे, ये बातें उनके जीवन में अभी हो ही रहा है। Wherever you go, you are seeing famine. आप कहीं भी आप जा रहे हो, जहां पर भी आप जा रहे, आप अपने जीवन में केवल अकाल ही देख रहे हो। There is no enough money in your hand. आपके पास भरपूर पैसे नहीं आते हैं। The future of your children is in danger. आपके बच्चों का भविष्य बहुत गंभीर है। And you are actually going to meet some kind of a witchcraft people to solve this problem. और आपके मन में they are thinking or they are doing. They are thinking. हाँ, और आप अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसे जादू टोना व्यक्तियों के पास जाकर अपनी परिस्थिति को मैं सुधारने की कोशिश करूं। But I can assure you, wherever you go, you will not find success. The solution is Jesus. मैं आपको ये बात चुनौती देता हूँ, आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको उन्नति नहीं मिलेगी। आपको उन्नति केवल यीशु में ही मिलेगी। I can see that some people are watching. They have a family root that is connected to witchcraft. अब मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी कुछ लोग जो उनके पूर्वज जो लोग थे, वे जादू टोना से उन लोग जुड़े हुए लोग थे। And you are in a spiritually dead situation, but today, if you listen to this word of God, God is helping you out of that problem.
और आपका जीवन जो है आत्मिक मृत्यु की दशा में है, अगर आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। When I am preaching, God is showing me a person who left his home many years ago. अभी मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे को एक ऐसे व्यक्ति को बता रहा है जिसने अपने घर को कई साल पहले छोड़कर चला गया। And God is showing me the place Allahabad. और परमेश्वर एक जगह का नाम बता रहा, इलाहाबाद। And you are doing some kind of a your job is selling something on the streets. और आपका काम, आपका वैसा ये है कि रास्ते पे आप कुछ चीज बेचते हो। I know you will watch this live. You will watch this broadcast. I know. अब मुझे मालूम है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को आप देख रहे हो, मुझे मालूम है आप हैप्पी है। God is telling you, go back to your family. परमेश्वर बोल रहा है कि आप वापस अपने परिवार के साथ चले जाओ, परिवार के साथ जुड़ जाओ। This is your time. Go back to your family and God will bless you. परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। If you are watching, when you watch this broadcast, please message to our WhatsApp number. We want a testimony from you. हमें आपसे एक गवाही चाहिए, कृपा करके आप अपनी गवाही को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। This is not an ordinary Zoom. The power of God is working in this Zoom. I know. ये कोई साधारण जूम सभा नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ का कार्य हो रहा है। Pastor Binu Johnson, God is touching your ministry. पास्टर बिनो जॉनसन, परमेश्वर आपकी सेवकाई को छू रहा है। You are doing ministry for a long time, but you see don't see that much manifestation in your ministry. आप सेवकाई कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण को नहीं देख रहे हैं। But I can see God is going to change your spiritual realm very soon. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपका आत्मिक स्तर को ऊंचा कर रहा है बहुत जल्दी। And God is telling you are not an ordinary person. You are a blessed person in Jesus Christ. परमेश्वर बोल रहा है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप आशीषित व्यक्ति हो, मसीह में आप आशीषित व्यक्ति हो। And through you a revival is going to start in Delhi, in different parts of Delhi. और आपके द्वारा से एक बेदारी चालू होने वाली है दिल्ली में। Even though you don't have many people in your church, but I can see that a crowd is coming to your church. हालांकि आपके पास एक भीड़ नहीं है आपकी कलीसिया की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक भीड़ आ रही है आपके पास। Many people that they are not from a Christian background is coming to your church for a deliverance. कई लोग जो मसीह परिवार से नहीं है, वे लोग आ रहे हैं आपके पास छुटकारे के लिए। This December is going to be a major breakthrough in your ministry, and the start of the next year will be a blessing in your life. ये आने वाला दिसंबर आपकी सेवकाई में एक बहुत बड़ा बेदारी का कारण होगा और आने वाला साल आपके लिए आशीष का कारण होगा। I can see that God is giving you a permanent place of worship. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको एक स्थिर जगह दे रहा है आराधना करने के लिए। Father, I bless Pastor Binu Johnson's ministry in the name of Jesus Christ. परमेश्वर पिता में पासवान बिनु जॉनसन की सेवकाई को आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Let him experience the life from Jesus. वे मसीह का जीवन को अनुभव करे। Right now the God is touching you. The God is touching you. The power of Jesus Christ, the life is touching your body. अभी इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है, परमेश्वर की सामर्थ छू रही है आपको अभी। I break every bondages and expand your territory in the name of Jesus Christ. हर एक बंधुआई को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, और आपके जो आपके तंबू को मैं आगे बढ़ाता हूँ मैं चारों दिशाओं में। While I'm praying for you, I can see that some kind of a paper, some kind of a manuscript. You are writing some kind of a manuscript and distributing to different parts. मैं देख रहा हूँ कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ लिख रहे हो और कई लोगों को वो चीज दे रहे हो। It is some kind of a newspaper. It is some kind of a newspaper. It is related to Christian newspaper. वो एक मसीह अखबार के साथ वो बातें, मसीह अखबार।
I can see a Malayalam word kahalam. एक मलयालम शब्द भी देख रहा हूं मैं वहां पर, That kahalam means trumpet. ट्रम्पेट। हाँ, वो जो मलयालम शब्द का मतलब है तुर्री। And that is in your that newspaper, that is a word title kahalam. और वो न्यूज़पेपर में लिखा है तुर्री। And God is going to do in your ministry, expect big things from God. Don't limit yourself. You have that power from Jesus Christ. और आप आपकी सेवकाई में आप परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा कीजिए, आप अपने आप को छोटा ना कीजिए। Father, I bless him in the mighty name of Jesus Christ. Let the power of God touch his life right now. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इस भाई को मैं आशीषित करता हूँ, इसके सेवकाई के लिए भी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Prophet Kiran, next month I'm going to his church in Delhi. That's a pastor. Yeah, very good, very good. God will Okay. do very mighty thing. प्रॉफेट नोएल ने बताया कि अगले महीने भविष्यवक्ता नोएल इस पासवान की चर्च में जा रहे हैं दिल्ली में। Okay, it's a confirmation. God is going to do big things in your life. ये बात को सिद्ध कर रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बातें कर रहा है। So we can see that when that person is away from his father's house, he was spiritually dead. His nature changed. हम देखते कि जब ये व्यक्ति अपने पिता के घर से दूर था तो वो आत्मिक तौर से मरा हुआ दिशा में था। But when we connect with his father, all the things came back to his life. लेकिन जब हम उस पिता के साथ हम वापस जुड़ जाते हैं तो ये सारी वस्तुएं हमारे पास आ जाती है। I want to prove that thing by reading a verse. Luke chapter 15 verses 22. Luke chapter 15 verse 32. 22 verses 22. Yes. 15 का 22 वचन पढ़ता हूं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। Okay, I will read in English also. But his father said to the servants, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. So we can see that when he came back to his father, he got everything. Yes. हम देखते कि जब अपने पिता के घर वापस आया, he got everything back. तो उसके पास सारे चीज उसे वापस मिल गई। First thing, he got a new life. सबसे पहली बात, उसको नया जीवन मिला। The father said he was a dead person, now he came back to life. पिता ने बोला कि वो मरा हुआ था, अब वो जीवित है। We know that we were sinners, but when we accept Jesus, something new happened in our spirit. We are born again. हमें मालूम है कि हम पहले पापी लोग थे, लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा आ जाती है। We have a spirit exactly like the exact image of Jesus Christ in us. हमारे पास वो आत्मा रहती है जो यीशु की आत्मा के समान दोनों भी एक हो जाती है। We can see that the father is giving him a robe. हम देखते हैं कि पिता जो है उसे एक अच्छा वस्त्र पहनाता है। You know that when Adam and Eve sinned, the glory left their body. हमें ये बात मालूम है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो ये उनके जीवन, उनके वस्त्र जो थे, महिमा का जो वस्त्र था, निकल गया। Actually, the robe represents the glory of God. वो जो वस्त्र था परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। When father, he came back to the father, first thing father did, he gave him a robe. That means the glory came back. सबसे पहली बात, जब ये लड़का वापस अपने पिता के घर आता है, पिता उसे एक अच्छा वस्त्र देता है। ये वस्त्र परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। How many of you can believe you have a glory? कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि आपके पास परमेश्वर की महिमा है, आपके पास परमेश्वर की महिमा। When you have a glory of God, wherever you go, you will see the manifestation of his power. अगर आपके पास परमेश्वर की महिमा है, आप कहीं पर भी जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण आप देखोगे।
Charles Jackson, God is telling you, come back to the glory of God. चार्ल्स जैक्सन, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर की महिमा के पास वापस लौट आओ. Come back to Jesus and seek Jesus. God will bless your business. यीशु के पास वापस आइए, यीशु को खोजिए, यीशु आपके व्यवसाय को आशीष कर रहा है, करेगा. Because the problems you are facing, the only solution is Jesus Christ. आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान केवल यीशु मसीह ही है. And my message to you, come back to the Father. मेरा वचन आपके लिए एक ही है कि पिता के पास वापस लौट आओ. Because with your Father, with your God, you have solution to every your financial problem. I can see the financial problems is going to be taken away from your life. क्योंकि यीशु मसीह में ही आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान होगा. मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में आर्थिक समस्या भी है. I can see that. I know your situation, but I can see 2 textile shop is coming to you. 2 textile shops. 2 which shops, prophet? Textile, which is cloth. मैं देख रहा हूं कि आपके पास 2 कपड़ों के वस्त्र के दुकान आपके पास आ रहे हैं. If you can believe this, God is telling the glory of God is going to cover your life. Glory of God. अगर आप इस बात को विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा आपको ढांपे रखेंगी. You lost everything. You lost the hope. But God is telling, don't lose your hope. The God is with you and God will provide you. आपने सारी आशा को खो दिया है, आप निराश हो गए, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है आप आशा मत गवाइए, आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है. And I am praying for a financial miracle in your life. God is going to open a door of financial miracle in your life. मैं आपके जीवन में आर्थिक चमत्कार के लिए एक प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर आपके जीवन में एक द्वार को खोल रहा है, आर्थिक का द्वार. It's not about Charles Johnson. Those who need a financial miracle, you can also believe, because the God's power is for everyone. ये जो वचन है, ये वचन केवल चार्ल्स जैक्सन के लिए नहीं है, ये वचन सभी के लिए यहाँ पर जो उपस्थित है. अगर आपको ये आर्थिक चंगाई चाहिए, आप सभी लोग विश्वास कीजिए. If you are in a debt situation, if you are in a financially difficult situation, just receive this word and receive your miracle right now. अगर आप कर्जे में हो, अगर आपका आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर है, तो आप इस वचन जो मैं बोल रहा हूं उसको ले लीजिए और परमेश्वर आपके भी जीवन में आर्थिक परिस्थिति को बदल देगा. Nigel brother, God is giving you a new door of financial blessing. थैंक यू नाइजल भाई, परमेश्वर आपको एक नया द्वार दे रहा है आर्थिक की आशीष के लिए. And whoever wants that thing, it will happen. It will happen. और जिसको भी ये बात आर्थिक आशीष चाहिए, उनके जीवन में होने वाला है. आप प्रतिक्रिया दिखाइए. I can see a name Technospark something, and God is telling you, you are in a financial troubling situation, and God is going to change your financial problems. मैं एक नाम देख रहा हूँ टेक्नो, और परमेश्वर बता रहा है कि आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर है और परमेश्वर आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदल रहा है. When I see you, I can see a Brahmin related ancestry in your life. Brahmin. Can you repeat Brahmin related? That means their forefathers were Brahmins. In our spirit, I can see that. मैं देख रहा हूं कि आपके जो पूर्वज जो लोग थे वो ब्राह्मण लोग थे. But I don't know about whether you don't know what it is in your family tree. मैं देख रहा हूं कि आपके जो पूर्वज लोग थे वो ब्राह्मण लोग थे. But God, whatever your troubling situation, whatever is blocked in your spiritual area, I cancel in the name of Jesus Christ. लेकिन आपके जीवन में जो रुकावट है, जो भी बातें जो आपकी परिस्थिति को रुका रही है, यीशु के नाम से मैं उसको निकालता हूं, मैं कैंसिल करता हूं. Can you believe Jesus can do a miracle in your life? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है? If you believe this, God is going to restore your situation. Restore your अगर situation. आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को पुनः स्थापना कर सकता है.
I cast out every demon in the name of Jesus Christ. हर एक अंधकार की शक्तियां, दुष्ट का प्रबल इनके जीवन से मैं खदेड़ता हूँ। Get out in the name of Jesus Christ. I command that thing to leave the family. मैं उसे हुक्म देता हूँ कि इसके परिवार को छोड़ के चले जाए। Father, I am praying for the person, Techno Spark. Are you unmuted? Can you unmute yourself? Can Yes, you he's unmute? unmuted. Yes, he's Okay. unmuted. Brother, what is your name? भाई आपका नाम क्या है? रजनीश। भाई आपका नाम क्या है? बोलिए। रजनीश। थोड़ा जोर से बोलिए। रजनीश। Please come close to the phone. Okay. फोन से Okay. नजदीक आइए। रजनीश। हाँ जी। Okay. I see a curse which is following your family. मैं देख रहा हूँ एक श्राप जो आपके परिवार से वो आगे आ रही है, पूर्वजों से आ रही है एक श्राप। It is affected two areas. One is the financial problem. Second one is the health problem. ये जो श्राप है आपकी परिवार में दो क्षेत्रों में कार्य कर रही है। पहला क्षेत्र है आपकी आर्थिक परिस्थिति और दूसरा क्षेत्र है आपके परिवार में कई लोग बीमार है, बीमारी। Like the case of yes. Yes, he's confirming Okay. it. Okay. Brother, wherever you go, like the case of the prodigal son, wherever you go, you will see famine. Wherever you sow, you will see problems. उड़ाऊ पुत्र के समान आप जहां पर भी जाते हो आप अपने जीवन में केवल अकाल ही देखते हो। But if today God is changing your situation. लेकिन आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल रहा है भाई। Can you believe Jesus can change your situation? क्या आप विश्वास करते हो यीशु आपकी परिस्थिति को बदल सकता है? क्या आप विश्वास करते हो? Father, I pray for a deliverance right now in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। I disconnect every bondages from their forefathers in the mighty name of Jesus Christ. हर एक पूर्वजों से आया हुआ जो बंधन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन बंधनों को मैं काटता हूँ। I cancel that disease that following the family in the name of Jesus Christ. जो भी बीमारियां इस परिवार को आ रही है, के पीछे दौड़ रही है, इन बीमारियों को मैं कैंसिल करता हूं मैं। I command that demonic influence to go out from their lives. ये शैतानी प्रबल, ये शैतानी प्रभाव जो इस परिवार पर है, इसको हुक्म देता हूं उनको छोड़ के चली जाए। Out in the name of Jesus Christ. निकल जाओ अभी यीशु के नाम से, अभी सब निकल जाओ। Right now I place my hand. The glory of God is covering your body. अभी मैं अपने हाथ को आपके ऊपर रखता हूं, परमेश्वर की महिमा आपको ढांप रही है भाई। Wherever the glory of God is manifesting, there is a miracle. जहां पर भी परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण होता है, वहां पे आशीष होती है। I can see that something is leaving from your body. मैं देख रहा हूं कुछ चीज आपको छोड़ के जा रही है। Father, I pray for a mighty deliverance. Let him experience that deliverance today. परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक अद्भुत छुटकारे के लिए इनके जीवन में, और इस छुटकारे को ये भाई अनुभव करे। Today itself, let him see that miracle. आज ही ये भाई उस चमत्कार को देख सके। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। Okay. Now we are continuing our message. We can see that when that person came to his father, everything came back to him. अभी हम देखते कि ये भाई जब अपने पिता के घर वापस आए तो ये भाई को सब कुछ वापस मिल गया। He got his glory back. ये भाई को अपनी महिमा फिर से मिल गई। He got a brand new life because he was a dead person in spirit. ये भाई को एक नया जीवन मिला क्योंकि ये भाई पहले मरी हुई दशा में थे। So if you accept Jesus Christ in your life, everything will change. अगर आप यीशु को अपने जीवन में उसको स्वीकारते हो तो सब कुछ नया होता है अपने जीवन में। If you are a person who don't accept Jesus Christ as your savior, you can accept Jesus Christ as your savior today.
अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, तो आज आप उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। Because Jesus is the only solution to your problems. My message is come back to the Father. क्योंकि यीशु ही है आपके जीवन में समाधान करने वाला। और मेरा जो प्रचार है आज कि आप पिता के घर वापस आइए, सभी लोग पिता के पास वापस आइए। Any of you in this Zoom, are you did not accept Jesus Christ? Somebody is यहाँ पे इस Zoom की सभा में ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया? And not baptized? आपका पानी का बैप्टाइज, you mean to say water baptism or fire baptism? Yes, water baptism. Yes. यहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया और पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया? If there is anybody, you take a decision. You accept Jesus. Those who are watching through the Facebook, I am telling, accept Jesus. Accept Jesus. This is the first thing you have to do. अगर आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो सबसे पहली बात आपको करना है, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो। When you accept Jesus, the spiritual death will be cast out and a new life will come to your life. जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, तो ये जो आत्मिक मृत्यु थी पहले, वो निकल जाती है और आपके पास एक नया जीवन आता है। And the glory of God can come to your life. The authority of God will come to your life. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आती है और परमेश्वर का अधिकार भी आपके पास आता है। Okay, I am continuing my message. Let us again read Romans chapter 4 verses 17. आइए वापस रोमियो का 4 अध्याय का 17 वचन में वापस आते हैं। Again, I will read. This is what the scripture mean when God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. उसने परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। And my second point, God creates new things out of nothing. मेरा जो दूसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर जो बातें नहीं है उन बातों को लेता है मानो कि वो है। We can see that from the book of Genesis, God created this universe out of nothing. हम देखते कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की जहां पर कुछ नहीं था। He just commanded and it came to existence. परमेश्वर ने केवल आज्ञा दिया, बोला और वो बातें बन गई। Before that creation, everything was inside the God. सृष्टि रचने से पहले सब कुछ परमेश्वर के अंदर में था। And when he commanded, that things came into existence. और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो ये सारे वस्तुएं बाहर आकर वो बन गई। If you read the chapter Genesis, we can see that procedure, the creation procedure. अगर हम उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो हम रचना कैसे हुआ, परमेश्वर ने कैसे बनाया, उसको हम समझ सकते हैं। I want to stress this point. Before creation, everything was inside the God. मैं इस बात को मैं जोर देना चाहता हूं कि सृष्टि की रचना से पहले सब कुछ परमेश्वर के अंदर में था। Let us read Romans chapter 11 verses 36. Romans chapter 11 verses 36. रोमियो का 11 अध्याय का 36वां वचन हम पढ़ते हैं। Yeah, I will read first. For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. All glory to him forever. Amen. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। From this verse we can see that everything comes from him. हम देखते हैं इस वचन के हम सब देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है।
and everything was for his glory. और सब कुछ उसी की महिमा के लिए है. And you are created for God's glory. और परमेश्वर ने हमें इसलिए रचाया, उसकी महिमा के लिए रचाया. And God has given us his glory, and we are the glory of God. परमेश्वर ने अपनी महिमा हमें दिया है और हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए है. How many of you can believe that you are created for his glory? कितने लोग इस बात पे विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे रचाया है उसकी महिमा के लिए? Because I believe my creation is for the glory of God. I always glorify Jesus. क्योंकि मुझे इस बात को मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे रचाया उसकी महिमा के लिए. So if you believe you have been created for the glory of God, you can see that wherever you go, the glory will manifest. अगर इस बात पर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपको बनाया उसकी महिमा के लिए, तो आप जहां पर भी आप जाओगे परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा से प्रकट होगा. When I am speaking, when I am preaching, I can see that a glory cloud is over the head of people. अब जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि महिमा का बादल लोगों के सिर के ऊपर आया है. If you are under the glory cloud, you will see manifestations. You will see prophecies. अगर हम महिमा के बादल के नीचे में है तो हम हमारे जीवन में प्रकटीकरण को देखेंगे, भविष्यवाणियों को देखेंगे. We can see that there is an incident in the Bible, transfiguration of Jesus Christ. हम बाइबल में एक चीज को देखते हैं, यीशु का रूपांतर हुआ है. यीशु का रूपांतर. When Jesus' body transfigured, the disciple was with him. जब यीशु का शरीर का जब रूपांतर हुआ था, यीशु के चेले उसके साथ थे. His body changed. His robe became very white. हम देखते कि जब यीशु का रूपांतर हुआ, उसके जो कपड़े थे बहुत अत्यधिक सफेद हो गए. And see that when they were under a glory cloud. और वहां पर हम देखते कि ये सब लोग एक महिमा के बादल के नीचे में थे. I can see that Moses and Elijah came to Jesus and talked with Jesus. और उस वक्त मूसा और एलिया यीशु से बात करने लगे थे. And the disciples know, and when they see that Moses and Elijah, they instantly knew that it was Moses and Elijah. और हम देखते कि जब चेलों ने जब मूसा और एलिया को देखा तो वो समझ गए कि ये मूसा और एलिया ही है. Actually, it was a miracle because the disciple never saw Moses and Elijah, because they were lived many years before at the time of Jesus, the disciples' lifetime. हम देखते कि ये जो घटना घटी है ये बहुत चमत्कार है, इसलिए क्योंकि मूसा और एलिया जो है ये यीशु के चेलों के बहुत पहले ही वो जीवित थे. इन्होंने कभी मूसा और एलिया को कभी नहीं देखे थे इन्होंने. When they were under the glory cloud, they were able to understand spiritually what is happening. जब वो महिमा के बादल के अधीन में थे तब वो आत्मिक रूप से क्या घटना घट रही है इस बात को वो समझ सक रहे थे. I believe that we are always under the glory cloud. We have the glory. मेरा यह विश्वास है कि हम हर दम महिमा के बादल के अधीन में हैं. हम लोग हर दम. Because of that glory, we can prophesy, we can preach, we can pray for the sick. वो महिमा का बादल के कारण ही हम हर दम भविष्यवाणी कर सकते, हम हर दम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते. If you are a person who want to do ministry, who want to do good things in your life, just believe that you are under a glory covering. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो सेवकाई करने की आपकी इच्छा है तो आप इस बात पे आप विश्वास कीजिए कि आप हर दम महिमा के बादल के नीचे में हो. आप हर दम. So God created you for his glory. इसलिए परमेश्वर ने आपको रचाया उसकी महिमा के लिए. Everything comes from God. Everything comes from God. हर कुछ परमेश्वर की ओर से आता है. He created the earth. He created everything. All things came from God. All things came inside of God.
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की इस यहाँ पे संसार में, लेकिन सब चीज परमेश्वर के अंदर से आई है। Next thing I want to say, God created everything through Jesus Christ. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सब बातों को यीशु के द्वारा से किया है। Let us read John chapter 1 verses 3. योना का पहला वचन, पहला अध्याय का तीसरा वचन को पढ़ते हैं। God created everything through him, and nothing was created except through him. सब कुछ उसी के हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। Here it is mentioning about Jesus Christ. Jesus is the word of God, and through Jesus God created everything. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन जो है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह ही वचन है, और उस वचन के द्वारा से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Let us read again another chapter, Hebrew chapter 11 verses 3. हम देखते हैं इब्रानी का 11 अध्याय का तीसरा वचन पढ़ते हैं। But faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we see now did not come from anything that can be seen. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। We can see that in this verse the God is saying entire universe, everything is made by the word of God, which cannot be seen. हम देखते कि यहाँ पर सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। Actually, it cannot be seen. The word we cannot see with eyes. We cannot see with our eyes that the universe is made by the word of God. हम उस वचन को देख नहीं सकते कि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा से इस सृष्टि की रचना की। But the truth is, Jesus, the word of God, is holding everything in the universe. Everything, each and everything is held by the word of God. लेकिन सच्चाई है कि ये सारा सृष्टि जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा से उसको स्थिर खड़ी की गई है। I can see that Jesus holds everything together. मैं ये देख रहा हूँ कि यीशु सब कुछ उसने उसको पकड़ के रखा है। I am a chemistry teacher. And I know that every object in the world is made of atoms. मैं एक केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ, और मुझे मालूम है संसार में सब कुछ जो है वो एटम जो है उसके द्वारा से होता है। We cannot see atoms through our naked eye. हम एटम जो है अपने शारीरिक आंखों से उस एटम को हम देख नहीं सकते। And inside an atom there is a proton, there is a neutron. और एटम के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। And these are held together by another thing called gluons. Gluons. या ग्लूकॉन। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरा चीज है जो पकड़ के रखता है, उसका नाम है ग्लूकॉन्स। But the amazing thing is that the proton has a positive charge and the proton has a positive charge and electron has a negative charge. हम देखते हैं कि प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। These things never come together because it will repel. ये दोनों चीज वो आपस में जुड़ते नहीं, क्योंकि वो उसको दूर किया जाएगा। If you hold two magnets and if you hold the south pole and the second magnet south pole, if you come close, it will repel. Just like that, the positive and negative thing will repel. Sorry. अगर हम दो चुंबक को लेंगे और दोनों चुंबक का जो दक्षिण जो भाग है, दोनों का दक्षिण भाग को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो दोनों चुंबक कभी नहीं जुड़ पाएंगे। So actually, I cannot go to the deeper things, but I in a simple way I can say that it is impossible for the electrons to come together because it will repel. तो ये असंभव बात है कि इलेक्ट्रॉन को दोनों जुड़ने के लिए, क्योंकि वो उसको फेंका दिया जाएगा।
But in a scientific way, we can say that a nuclear force is holding all these things together. हम एक साइंटिस्ट की इसमें हम भाषा में बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उन सब चीजों को पकड़ के रख रहा है. A nuclear force is holding all these things together. Nuclear force. एक न्यूक्लियर सामर्थ इन सब चीज को पकड़ के रख रहा है. But the science don't know what is the reason for this nuclear force. लेकिन साइंस को ये शक्ति क्या है, उनको ये मालूम नहीं है क्या शक्ति जो उसको पकड़ के रख रही है. But the Bible says Jesus hold every creation together. लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह सब चीजों को पकड़ के रखता है. I just want to prove this by a verse. Hebrew chapter 1 verses 3. और हिब्रानी का पहला अध्याय का तीसरा वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं. मैं Hebrew chapter 1 वो verse उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है. वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा. We can see that it is written, he sustains everything by the mighty power of his command. यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है. I can see that by the word of God. Or in other words, we can say Jesus Christ hold everything together. This is the force. एक सरल भाषा में अगर हम उसको बोल सकते हैं कि यीशु मसीह सब वस्तुओं को पकड़ के रखता है अपने वचन से. This is actually a reality. God spoke his word, entire universe formed. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला और सारी सृष्टि की रचना हुई. So the same word of God is inside us. That is Jesus Christ. वही वचन हमारे अंदर में और वो वचन यीशु मसीह है. Actually, the creation is God's character. Creation is God's character. हम देखते हैं कि सृष्टि जो है परमेश्वर का चरित्र है. And we can see that God created everything and he rested. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब चीजों की रचना की और उसके बाद उन्होंने आराम किया. So there is nothing to be created yet because the creation is already over. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को अभी और कुछ किसी चीज की सृष्टि करने और कुछ बातों का सृष्टि करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब चीज की सृष्टि हो चुकी है. And God created everything we need. और परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया. And you don't have to create anything because God already created for you. आपको कुछ चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ बना दिया है. And it is already in your spirit. और ये आपके आत्मा के भीतर में है. The truth is, you have been given an inheritance in Christ. सच्ची बात यह है कि आपको एक विरासत मिली है मसीह में. आपको एक विरासत मिली. You know what is an inheritance? वो विरासत क्या है मालूम है आपको? Because an inheritance is given to you in Jesus Christ. वो विरासत क्या है मालूम है आपको? An inheritance is already given in Jesus Christ. एक आपको वो विरासत दे दिया गया है मसीह में. वो तो ऑलरेडी दे चुका है परमेश्वर ने. Let us read Ephesians chapter 1 verses 11. एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय का 11 वचन को पढ़ेंगे. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For he chose us in advance and he makes everything work out according to his plan. उसी में जिसमें हम भी उसी को मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर निराश बने. So we can see that your inheritance is already in your spirit. It is given by God. हम देखते हैं कि आपकी विरासत आपकी आत्मा में है और परमेश्वर ने आपको ये दे दिया है. And your inheritance is for this world and also for the coming world. और आपकी जो विरासत है इस युग के लिए भी है और आने वाले युग के लिए भी है. For example, God knows. I am giving an example. If you are a person who is traveling to different places and you don't have a vehicle or car,
and God knows you want a car. हो सकता है, मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप सफर करते हो और आपको एक कार की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आपको कार की जरूरत है। And God knows your future from start to end. और परमेश्वर को आपका भविष्य मालूम है, शुरुआत से अंत तक परमेश्वर को पूरा मालूम है। If you need a car, God has already provided that car for you. अगर आपको कार की जरूरत है तो परमेश्वर ने वो कार का प्रयोजन आपके लिए पहले से ही करके रखा है। आमीन। When you pray for that car, it is already created for you in some place. When you pray, that is coming to you. जब आप अपने कार के लिए प्रार्थना करते हो, वो कार का प्रयोजन परमेश्वर ने पहले से करके रखा किसी जगह पे, और वो कार आपके पास अवश्य आएगा। Each and every blessing is like this. हर एक आशीष वैसी ही है जो उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। First, you should have a revelation that everything is created for you already by Jesus Christ. सबसे पहले प्रकाशन आपको ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया मसीह में। If you want a house, it is already provided by Jesus Christ. अगर आपको एक घर की जरूरत है, परमेश्वर ने आपको वो घर का पहले से बना के रख दिया है। Your life partner, whom you do marry, it is already selected by God. आप किससे शादी करने वाले हो, परमेश्वर ने इसको पहले से नियुक्त करके रखा है कि आपकी शादी किससे होने वाली है। Some people are worried about their marriage. They don't get a suitable life partner. But God is telling you, your life partner is already selected by God. कुछ लोग यहाँ पे चिंतित है अपने होने वाले जीवन के व्यक्ति के लिए, लेकिन परमेश्वर बोला कि मैंने आपकी शादी को मैंने जोड़ के रखा उचित व्यक्ति के साथ। And God is showing me many marriages is going to happen this year. आमीन। परमेश्वर मेरे को बता रहा है कि ये साल कई लोगों के जीवन में शादियां होने वाली है। You tried a lot. You suffer a lot, but God is telling your life partner is already selected by God. आपने बहुत यत्न किया, आपने बहुत परिश्रम किया, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने आपका जीवन का साथी को मैंने पहले से इसको चुन के रखा हूँ। I have a appointment to pray for marriage right now. Whoever wants to be pray for a marriage, just receive and raise your hand. I am praying for a marriage. यहाँ पर जो भी व्यक्ति शादी के लिए करना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपनी शादी करवाना चाहता है या अपने बच्चों की शादी करवाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हाथों को उठाए। Because God is telling to me, it is already selected by God, and when I pray, it will open. क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने पहले से चुनाव करके रखा हो, और जब ये भविष्यवक्ता मानी प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाएगा इनके जीवन में। Father, I am praying for marriages. Let them find a suitable life partner in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर मैं शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके पास एक उचित वो व्यक्ति उनके जीवन में आए। And whatever they needed, God knows their nature. It is if they want to do a ministry, let him receive a life partner suitable for a ministry. और जो भी उनका स्वभाव हो, अगर उनकी तीव्र इच्छा है कि वो सेवकाई करे, तो उनके पास ऐसा जीवन साथी मिले जो उनको सेवकाई में मदद का कारण हो सके। If they want to do a business, God give him a life partner who is connected to a business. अगर वो व्यवसाय करने की इच्छा है, वो परमेश्वर उन्हें ऐसे व्यक्ति दीजिए जो उन्हें व्यवसाय में मदद का कारण हो सके। Father, whatever is their need, I know you are already provided. I know it is provided by you. परमेश्वर पिता, उनकी जो भी जरूरत है मुझे मालूम है आपने उस चीजों का प्रयोजन करके रखा है। I open and I close. I open every doors to the marriages in the name of Jesus Christ. मैं उन दरवाजों को खोलता हूँ, उनके शादी के लिए सारे दरवाजों को खोलता हूँ। And I close every doors that is opened by devil in the name of Jesus Christ. और शैतान ने जो भी दरवाजे इनके जीवन में खोला, इन सारे दरवाजों को मैं बंद करवाता हूँ। Let them see a celebration in their life very soon.
वे अपने जीवन में एक उत्साह को देख सके, एक आनंद का And उत्साह। God is telling me within weeks you are going to see your miracle. Within weeks, no more time. Within weeks. परमेश्वर बोल रहा है कि हफ्तों में ही आप इस चमत्कार को देखेंगे अपनी शादी के लिए, हफ्तों Father, I में। bless each and everyone praying for a marriage. Thank you for hearing our prayer. In the name of Jesus, we pray. Amen. परमेश्वर पिता, मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ऐसे और इन लोगों को आप उचित वर दे रहे हैं। In the name of Jesus, we pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। So we can see that the inheritance is already given by Jesus. तो हम देखते कि विरासत जो है यीशु मसीह के द्वारा से हमें मिल चुकी है। So when we get this revelation that it is already in us, it will manifest to our physical realm also. तो जब हम इस बात को, ये प्रकाशन हमें मिलता है कि ये चीज हमारे आत्मा के भीतर में है, तो ये जल्दी हमारे जीवन में प्रकट होगा। When Adam and Eve sinned, their authority gone from them. जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनका अधिकार उनके द्वारा से बाहर चला गया। But when we receive Jesus Christ, this authority is coming back to you. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये अधिकार वापस हमारे जीवन में आता है। So I can say that you have an authority to create. तो मैं ये बात अवश्य बोल सकता हूँ कि आपके पास एक अधिकार है, रचना करने का अधिकार। And God says something and it created. I can say that you should have a faith, God kind of faith in you. You should have God's kind of faith in you. Yes. मैं देख रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने बोला तो कुछ रचना हुआ, वैसे ही आपके पास परमेश्वर के समान का विश्वास होना चाहिए। God commanded and all things come into existence, which is already in God. परमेश्वर ने आज्ञा दी और जो बातें उसके अंदर में थी वो सब बातें बाहर आई। When you command, the things which is already inside your spirit will manifest. जब आप आज्ञा देंगे, जो बातें आपके आत्मा के अंदर में है वो बातें का प्रकटीकरण होगा आपके जीवनों में। How many of you can receive this revelation? It is already inside you, and when you command, it will come out. आपके अंदर में यीशु है और जब आप उसको अधिकार लेंगे, आज्ञा देंगे, तो ये जो बातें आपके अंदर में वो बाहर प्रकटीकरण होगा। There is nothing. There is nothing going to be created for you. It is already created by God. But when you command, the created thing come into existence. परमेश्वर आपके लिए कुछ बात रचना नहीं करेगा, जो कुछ है परमेश्वर ने पहले से आपके लिए रचना कर चुका है और वो आपके आत्मा के अंदर में है। जब आप आज्ञा देंगे तो वो बातें जो आपके अंदर में है वो बाहर निकलकर प्रकटीकरण होगा। So God is telling, whatever you need, just command in the name of Jesus Christ. तो परमेश्वर बोल रहा है, जो भी बातें आपको चाहिए उन बातों को आप अधिकार लो और आज्ञा दो, वो आपके जीवन में होगा। If you command, your life will come back to normal. अगर आप आज्ञा देंगे तो आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। You are going to difficult condition, so many problems. Your life is going in an abnormal condition, but when you command to your life, it will come back to normal. आपकी जीवन शैली, आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो रही है और आपका परिस्थिति नाजुक है, लेकिन जब आप आज्ञा देंगे तो वापस आपकी परिस्थिति स्थिर हो जाती है। And God is telling me a restoration will happen in somebody's life. परमेश्वर बता रहा, पूर्ण स्थापना हो रहा है कुछ लोगों के जीवन में आज अभी। A restoration. God is telling me a restoration. Whatever you lost it is going to restore by God. परमेश्वर बता रहा, पूर्ण स्थापना, जो भी बातें आपने गवाई अपने जीवन में, परमेश्वर उसे लौटा रहा है आपके पास। God is going to restore your lost years. कितने साल आपने गवा दिए, वो उन सालों को परमेश्वर वापस दे रहा है। Dambar Kumari, God is restoring your life. दंबर कुमारी, परमेश्वर आपके जीवन को पुनर्स्थापना कर रहा है।
I can see God is restoring your life, restoring your life. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापना कर रहा है। If many of the people think that I lost many years of my life, but God is telling God can give you back that lost years. कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के कई साल गवा दिए हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा मैं तुम्हारे जो साल गवा दिए मैं उसको वापस ला सकता हूँ आपके जीवन में। Akamsha Solomon, God is restoring your life. आकांक्षा सोलोमन, परमेश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापना कर रहा है। You lost many years, many time, being आपने included in some kind of a negative things, but God is restoring your life. आपने अपने जीवन में कई साल गवा दिए, लेकिन परमेश्वर आपके सालों को पुनः स्थापना कर रहा है। And I can see that a clock, its handle is turning in a reverse order. और मैं देख रहा हूँ एक घड़ी, वो घड़ी का कांटा जो है वो उल्टा दिशा में जा रहा है। So this thing will happen in your life. If you believe Jesus, God will restore your time, restore your age, restore your situation. I can see some kind of a change is happening in your body also. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापना कर रहा है, आपके समय को, आपके सालों को और आपके कर्जे को भी पूरा कर रहा है। I can see a restoration in your body also, a restoration in your body. आपके शरीर में परमेश्वर पुनः स्थापना कर रहा है, आपके शरीर में भी। How many of you can believe God can restore whatever you lost? कितने लोग ये बात को विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उन चीजों को पुनः स्थापना कर सकता है जो भी चीज आपने गवा दिया? Whoever raised their hand, I am praying for each and everyone. They are receiving this मैं revelation. उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Father, I am praying for the people who raised their hands for this revelation. पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर किया। I pray for a complete restoration of their life. मैं उनके जीवन को पूरा पुनः स्थापना होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। All the years they lost, come back in the name of Jesus Christ. जितने साल वो व्यर्थ में चले गए, वो पूरे साल वापस आए उनके जीवन में। All the time they have wasted, come back to life in the name of जो Jesus समय Christ. उन्हें गवा दिया, वो समय उनके जीवन में वापस आ जाए। Sister Pushpa, God is doing some kind of a miracle for your family. बहन पुष्पा, परमेश्वर कुछ प्रकार का चमत्कार कर रहा है आपके परिवार के लिए, पुष्पा बहन। And God is touching your daughter, and God is opening a door for your daughter. परमेश्वर आपकी बेटी को छू रहा है और आपकी बेटी के लिए एक द्वार खोल रहा है। I can see that an upgradation in her job is coming. A miracle in her job is coming. मैं देख रहा हूँ उनके नौकरी में परमेश्वर उसकी नौकरी को ऊंचा कर रहा है। I don't know what you are planning, but I can see that God is shifting you into another country. मुझे नहीं मालूम आपकी योजना क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको एक दूसरे देश में लेके जा रहा है। I can see travel. I can see travel. They are traveling to another country. मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे देश में सफर कर रहे हो। I can see lots of hindrance for their travel. Right now, I am canceling it in the name of Jesus Christ. मैं देख रहा हूँ कि उनके सफर के लिए बहुत सारी रुकावट है और यीशु के नाम से उन रुकावट को मैं कैंसिल करता हूँ। मैं A visa is going to stamp for your daughter. आपके बेटी के लिए परमेश्वर एक वीजा दे रहा है। Can you unmute yourself? Can you unmute yourself? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पुष्पा बहन। Is there any something relevance in your life what I am talking? तो भविष्यवक्ता ने बोले आप कुछ बोल सकते हो पुष्पा बहन। जी। I want to talk to your daughter. Yes. आपकी बेटी से Are you बात करना planning to चाहते go हो for somewhere? जी फिर से बोलिए। Nigel brother, can you translate for me? फिर से बोलिए बहन पुष्पा। जी मैं उनकी बेटी, जी मेरी बेटी है, वो बोल रही है। आपको फॉरेन जाने की इच्छा है? जी हमारा तो अभी मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का जॉब नहीं है। अभी तक हम लोग जॉब के लिए ही वेट कर रहे हैं कि कोई जॉब हमको मिल जाए प्रभु की ओर से।
तो अगर हमें इच्छा वैसे भी था कि अगर हमको बाहर की कंट्री में भी जॉब मिले फिर भी हम जाएंगे। Okay, They are saying translate in both English. the husband and wife are not having job. They are looking out for a job, and if it is God's will for them to go abroad, they are willing to go abroad. And today the God is doing it for you. आज परमेश्वर आपको विदेश लेके जा रहा है दोनों को। I am doing a prophetical action. In my hand nothing, but I stamp. This is a paper. This is your passport. I am stamping a visa on your passport. आमीन आमीन। मैं एक भविष्यवक्ता कार्य कर रहा हूँ आपके जीवन में। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं स्टैम्प कर रहा हूँ आपके पासपोर्ट पे, वो स्टैम्प दे रहा हूँ वीजा का। But all your blessing is coming from Jesus Christ. Stay connected with Jesus Christ. आपकी सारी आशीषें यीशु के द्वारा से आ रही है। यीशु से आप संपर्क अवश्य रखे रहिए। I can see a European country is opening for you. मैं देख रहा हूँ यूरोप का एक देश आपके लिए खुल रहा है। Where you want to go? कौन से देश में आपको जाने की इच्छा है? अभी तक हम कुछ भी नहीं सोचे थे, बस हमको जॉब चाहिए था। हमको कहीं भी मिले हम जाने के लिए रेडी थे। कौन से देश जाना चाहते हो? प्रभु जहाँ ले जाएगा हम वहीं जाएंगे। वैसे कोई भी कंट्री हम सेलेक्ट नहीं किए थे, माइंड में कुछ भी नहीं था हमारे। He has not decided which country to go. They say whichever country God wants. And God is telling, do the things. For example, you have to do an action as a faith. Do the paperwork. Do whatever you need. विश्वास का कार्य करना है। So what And is this is the going to action? happen. Prophet, what action you want them to do? No. For example, if they want to go for another country, there is some procedures. They have to apply for some jobs. That kind of things I want them to do. भविष्यवक्ता बोल रहे हैं आपको विदेश जाने के लिए उन नौकरियों के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। आप जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो आप It is an action of faith. ये विश्वास का कार्य है। आपको कुछ करना है। ऐसे घर बैठे बैठे नहीं आने वाला है, आपको कुछ करना है। It is in the spirit, it is already done. So I believe it will come to your physical realm soon. आत्मा में हो चुका है और मैं विश्वास करता हूँ आपके पास अवश्य होगा। So I bless you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ। Father, I am praying for Pushpa and her daughter and also for her husband. Father, I am praying for, let them receive a job in the other country. I pray for a travel. I pray for a brand new visa in their passport. In the name of Jesus, I pray. Amen. परमेश्वर, मैं बहन पुष्पा, उसकी बेटी और उसके दामाद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप उनको एक अच्छी नौकरी दे रहे विदेश में, और उस नौकरी के लिए जो भी वीजा की जरूरत है आप उनके लिए रास्ता खोल रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। So what I am preaching is, when you command, it will manifest. So whatever you saw in my preaching, when the word of God is preaching, it is manifesting. तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बात आप आज्ञा करोगे वो प्रकटीकरण होगा। And whoever received the revelation, I believe your life will change. और जिन्होंने इस प्रकाशन को मिला, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन बदल रहा है। And I see you are going to see a supernatural life. मैं देख रहा हूँ कि आप एक अलौकिक जीवन को देखने वाले हो। And your entire life will change, and you will see supernatural manifestation wherever you go. और आप अलौकिक जीवन को देखेंगे और आपका पूरा जीवन बदल रहा है। Father, I am praying for each and everyone. I pray that all the words of this your prophecy come true in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो वचन दिया गया भविष्यवाणी का हर एक के जीवन में वो सत्य प्रकट हो। And I am praying for every sick people watching. Right now, they receive a miraculous healing on their bodies. मैं हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो भी बीमार व्यक्ति यहाँ पर देख रहा उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। If you want a healing, raise your hand. I am praying for you. अगर किसी को यहाँ पर चंगाई के लिए प्रार्थना चाहिए, चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए, कृपया करके वो लोग हाथ उठाएं जिनको शारीरिक चंगाई चाहिए। And wherever is the problem, just place your hand on that part. जहां पर भी आपकी समस्या हो उस जगह पर आप अपने हाथों को रखिए।
when I will pray as a common prayer, but you will be healed. मैं एक साधारण सी प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप अवश्य चंगे हो जाओगे। Father, I am praying for each and everyone. Right now, the power of God manifest in their bodies. पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर एक के जीवन में उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण हो। Father, I pray that every eye problem be gone in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर, हर एक आंखों की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। Every thyroid problem come back to normal in the name of Jesus Christ. हर एक थायराइड की समस्या वो नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। Every problem that is related to their bones and joints be gone in the name of Jesus Christ. हर एक समस्या जो उनकी हड्डियों से जुड़ी है यीशु के नाम से चली जाए। Every problem that is related to the nerves and related to the blood be gone in the name of Jesus Christ. हर एक समस्या जो उनके खून से संबंधित है और उनके नर्व से संबंधित है यीशु के नाम से चली जाए। I can see that God is touching some diseases that is related to their head is going away. और मुझे परमेश्वर बता रहा है कुछ बीमारियां हैं जो आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, ये बीमारियां भी परमेश्वर निकाल रहा है। I can see that all the back pains, all the joints pains, God is taking away all that pains. हर एक घुटनों का दर्द, हर एक पीठ का दर्द, परमेश्वर जो दर्द हो रहा है शरीर में उसको निकाल रहा है। Father, I am praying for let the glory of God touch their body. Let the glory of God touch their body. Let them experience that heat on their bodies right now. परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो परमेश्वर की महिमा को अनुभव करे, परमेश्वर की सामर्थ और वो गर्माहट को महसूस करे। In the spirit, I can see that God is already touching you right now. Father, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus Christ. मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि परमेश्वर आपको छू रहा है, यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग चंगे हो जाए। In the name of Jesus, we pray. Amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। And it is already done. It is already done. You received your healing. You can ये हो check चुका your है, bodies. आपको आपकी चंगाई मिल गई है। Because it is already happened in the spiritual realm, you will see it in the body also. क्योंकि ये आत्मिक क्षेत्र में हो चुका है, तो आप शारीरिक क्षेत्र में भी अवश्य देखोगे। Just check your bodies, move your bodies, you will experience that. आप अपने शरीर को चेक कीजिए और अपने शरीर को हिलाइए और आप उसको देखोगे, अनुभव करोगे। If you experience that healing, just raise your hand, give glory to Jesus. अगर आप उस चंगाई को अभी महसूस कर रहे हो तो अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। And send your testimonies to the WhatsApp number. और अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजिए। If you want to give your testimony right now, you can give. अगर ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी है जो अपनी गवाही को देना चाहते हैं, अभी अगर आपको परमेश्वर ने अभी आपको छुआ तो कृपा करके अपनी गवाही हाथ उठाकर हमें बताइए। Some healings are instantaneous and some healings are gradual healings. कुछ चंगाई तुरंत होती है और कुछ चंगाई समय लगती है। Okay, I think that the Pavan D'Souza is raising. Do you have any healing on your body? Just raise your hand if you have any healing on your body. Translate. भाई पवन डिसूजा, क्या आपको चंगाई मिली? परमेश्वर ने अभी आपको छुआ? पवन डिसूजा, Can you unmute Pavan D'Souza? No, I'm searching for him. I'm searching for him. Where is he? Where is he? Prophet Kiran, you can. Yeah, Your right on co-host. top. Your co-host, you can do that. Yeah, okay. Pavan D'Souza, do you pastor. experience? हाँ, Yes, pastor. Yes, pastor. आपके बॉडी में क्या हुआ? वो पीछे में दर्द हो रहा था, इसलिए अभी वो आग जैसा मतलब निकला। Okay, you got a healing. Nice, brother. He's saying in the back he was feeling pain, but now he's not feeling any pain. अभी दर्द नहीं हो रहा पवन? अभी पवन? दर्द नहीं हो रहा। अभी Okay. दर्द नहीं हो रहा। नहीं दर्द नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। Because- He's saying he was feeling pain in the back, but now he's not feeling any pain in the back. All the glory belongs to Jesus. This is the power of the word of God. सारी महिमा परमेश्वर यीशु मसीह को जाती है। ये परमेश्वर के Those people who don't feel anything in their body, don't worry, because it is already happened. You will see that healing gradually.
अगर कुछ लोगों को चंगाई महसूस नहीं हो रही है, आप घबराइए मत, आपको चंगाई अवश्य मिलेगी, वो धीरे धीरे आ रही है आपके